Hello 8th class students, this is my fourth video from our chapter the expansion of British power in India, and today I will discuss about the conquest of Punjab and the policies of the Lord Dalhousie to annex the territories of India. First of all, topic is conquest of Punjab. Students, under the leadership of Ranjit Singh, the Sikh kingdom emerged as an independent and powerful force in the North India. मीन्स जब तक देखो महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी तरह से एंटर नहीं कर पाए पंजाब में. And there was a treaty held between the Maharaja Ranjit Singh and the British that is called the Treaty of Amritsar in the year 1809. And according to this treaty, the Sutlej River was considered as the boundary between the ब्रिटिश एंड द सिख किंगडम. तो जो सतलुज रिवर थी वो एक ब्रिटिशर्स और सिख किंगडम के बीच में एक उसको एक बाउंड्री डिक्लेयर किया गया अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन द ईयर 1809. बट आफ्टर डेथ ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह व्हेन ही वाज डाइड इन 1839 अ पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट इन द सिख किंगडम. तो यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल थी ड्यू टू द सेसेशन जहाँ पर इंटरनली इंस्टेबिलिटी थी यहाँ पर. So there was an opportunity for the Britishers to attack on the Sikh kingdom and expand their empire. So students, first Anglo-Sikh war was took place in the year 1845 to 1846 and it resulted in the signing of the humiliating Treaty of Lahore in 1846. तो यहाँ पर महाराजा दिलीप सिंह जो थे जो who were the son of the महाराजा रंजीत सिंह के सन थे महाराजा दिलीप सिंह, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स ने in the year 1846 that is called the Treaty of Lahore. And by this treaty the Sikh lost 2/3 of their kingdom. The 2/3 part जो था that was given to the Britishers and including the prize territory of the Jalandhar Doab. Prize territory means एक फ्लोरिस्ट एक काफी प्रोग्रेस्ड एक डेवलप्ड एरिया था जलंधर दोआब रीजन का. It also given to the Britishers. Further, the Punjab army was reduced to 20,000 cavalry and 12,000 इन्फेंट्री. तो इनकी जो पंजाब की आर्मी जो थी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया. ओनली देयर वर नाउ 20,000 cavalry and 12,000 इन्फेंट्री soldiers were there. And the British resident was forced and force was stationed in the Lahore. Means in the same manner of the subsidy lines, एक ब्रिटिश रेजिडेंट और जो उनकी जो फोर्स थी उसको भी स्टेशन किया गया लाहौर में. लेटर अनदर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1846. तो इसके बाद में एक और ट्रीटी साइन हुई 1846 में विच मेड द पंजाब ब्रिटिश रेजिडेंट द रियल रूलर ऑफ पंजाब, जिसमें कि ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे उनको रियल रूलर डिक्लेयर कर दिया गया कि पंजाब के रियल जो अथॉरिटी है रूलर है वो ब्रिटिश रेजिडेंट ही होंगे. दस पंजाब सी टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट. और इस वजह से जो पंजाब जो था वो ब्रिटिशर्स के हैंड में आ गया था. In the second Anglo-Sikh War in 1848 to 1849 पंजाब was defeated. तो यहाँ से एक लास्ट अटेम्प्ट किया सिख कम्युनिटी ने to gain back their position, but again Punjab was defeated and completely annexed by the British. Thus the last independent state of India was absorbed into the British Empire. So students, जो पंजाब जो था वो last independent state थी that was also absorbed into the British Empire. Next is the British expansion under Dalhousie. So students, Lord Dalhousie became the Governor General of India from the year 1846 to 1856. He devised some diplomatic methods to achieve territorial annexation peacefully. अब इन्होंने देखो पीसफुली वे से, ठीक है, कि पीसफुली वे से जो है एरियाज को अनेक्स करने के लिए इन्होंने कुछ एक ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था. First, it was devised by the Lord Dalhousie and to annex the subordinate states. Subordinate means जिन states ने subsidiary alliance को accept किया है उनको annex करने के लिए Lord Dalhousie ने doctrine of lapse को introduce किया था. Dalhousie wanted them under direct command of the British. अब Dalhousie चाहते थे कि जो subsidiary states हैं वो directly जो है Britishers के administration के under आ जाए. So as per doctrine of the lapse, इसके terms क्या थी? If the ruler of a subordinate state died, अगर देखो किसी सबॉर्डिनेट स्टेट का जो रूलर होता है वो राइड हो जाता है विदाउट ए नेचुरल मेयर हेयर, मीन्स उसका अपना कोई सन नहीं है, अपना सन नहीं है, नेचुरल मेयर हेयर नहीं है ऑफ हिज किंगडम, देन हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली लैप्स और पास इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. तब उसकी जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के हैंड में चली जाएगी. अगर किसी रूलर का देखो कोई सबॉर्डिनेट स्टेट का रूलर है उसकी डेथ होती है विदाउट ए नेचुरल मेयर हेयर, अपना कोई उसका खुद का बेटा नहीं है, तब जो किंगडम होगा वो ऑटोमेटिकली
ब्रिटिशर्स के हैंड में चला जाएगा। एंड द इंडियन रूलर्स कुड नॉट अडॉप्ट सन, अब यहाँ पे इंडियन रूलर्स को अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं थी, गोद लेने की परमिशन नहीं थी कि किसी को अडॉप्ट कर सके और पास द किंगडम टू देयर नेक्स्ट रिलेटिव्स, या फिर किसी और रिलेटिव्स को प्रोवाइड कर सके। नो, that condition was not there. So Dalhousie even refused to recognize the titles of ex-rulers or pay them pensions. Even देखो जो बाजीराव जो कि पेशवा थे, जिनके बारे में अब हमने मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिनको कानपुर डिथ्रोन करने के बाद उनको कानपुर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो इनके जो बेटे थे, ही वॉज आल्सो अडॉप्टेड, तो वो भी अडॉप्टेड सन थे, तो इसीलिए उनकी पेंशन को भी ब्रिटिशर्स ने देखो यहाँ पे बंद कर दिया था। सो मीन्स टोटली जहाँ पे जो डलहौजी जो थे वो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी इनके अंडर मीन्स रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी नहीं थे किसी भी टाइप से कि जो अडॉप्टेड सन है उनको जो तो पेंशन भी प्रोवाइड की जाएगी या फिर उनको एज ए डिक्लेयर किया जाएगा रूलर ऑफ द स्टेट आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। एंड देन सेवरल स्टेट्स लाइक सतारा, जयपुर होगा यहाँ पर, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी वर annexed under the doctrine of the lapse. And this unjust annexation of Indian state created resentment and anger among native Indians. अब जो देखो ये बिल्कुल ही अनजस्ट था, क्योंकि एक तो यहाँ पे सब्सिडी अलायंस को पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है स्टेट्स ने, उसके अंडर वर्क कर रही हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा, लॉयल होकर वो काम कर रहे हैं, फिर भी जो है उनकी स्टेट्स को नेक्स्ट कर लिया गया। And then it later became one of the chief factors for the outbreak of the revolt of 1857. तो ये 1857 के रिवोल्ट का एक मेन रीजन था that doctrine of lapse. Maladministration. Then several subordinate states were also annexed on the pretext of the maladministration. Maladministration क्या था यहाँ पर? इनकम्पिटेंसी, कि अगर आप ये ब्रिटिशर्स एक्चुअली में ये चार्जेस लगाए कि आप जो है इनकम्पिटेंट हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, मिस गवर्नमेंट है आपकी। सो दिस टाइप ऑफ अनजस्टिफाइड प्रोसेस ऑफ नेक्सेशन बाय डलहौजी ब्रॉट लॉट ऑफ पब्लिक कंडेमनेशन एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अवध। अब देखिए यहाँ पर चलो देखियो जो कि डलहौजी थे, हु वाज अ गवर्नर जनरल, was interested in the annexation of kingdom of the Awadh. The Nawab of Awadh had been an ally of the British since the Battle of Buxar. तो Battle of Buxar के बाद से ही totally ally थे. He became too much loyal towards the Britishers. He also signed the subsidy alliance with the Britishers. Subsidy alliance को भी accept किया था. And Nawab had also many heirs. इनके heirs भी थे, successors भी थे आगे. And therefore means doctrine of lapse के अंडर भी कहीं पर भी अवध जो था वो cover up नहीं होता था. So the British had to come up with some other pretext. अब इन्होंने कुछ एक और चार्जेस इसके ऊपर लगाए that deprived of him of his dominion and that is the misadministration. अब यहाँ पे इन्होंने चार्जेस लगाए अवध के ऊपर, उनके जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर, that of the misgovernment एंड रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर कुछ भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। सो हिज स्टेट वाज अनेक्स्ड इन द ईयर 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ द माल एडमिनिस्ट्रेशन। The annexation of Awadh created a great discontent in the British Army as most of the sepoys in the army were from the Awadh. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि यहाँ अवध से जो थे, अवध जो स्टेट थी वहां से काफी ज्यादा जो हमारे जो इंडियन जो ब्रिटिशर्स आर्मी में जो सिपाहीज थे देवर फ्रॉम द अवध। अवध देखो यहाँ पर आपका लोकेटेड होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पार्ट है ये अवध एट प्रेजेंट। सो अवध से काफी जो सिपाहीज थे वो अवध से थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे। सो अवध बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो सोल्जर्स थे वो काफी निराश हुए, ऐसे फोर्सेस थे ब्रिटिशर्स की। सो अवध जो था वो एक मेन सेंटर था रिवोल्ट का ऑफ द 1857। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू अंडरस्टैंड इट। हैव अ नाइस डे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।